ओहो। राजीव जी ने तो स्टार्ट कर दिया। थैंक्स। नहीं सर, इंसानों के बीच में I think we have already started recording, no? Yeah. हाँ, Yes, yes. आया था मैसेज। हाँ, Okay. So this is our very important session Vedanta on practice. the Vedanta in practice, because if we actually don't understand it, then there is no point in learning the Vedanta. I mean, that becomes all theory without any benefit. So let us start with our prayer. yes. Om Sahanavatu Sahanau Bhunaktu सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति शान्ति। शांति। शांति। I think it is visible now. Yeah, it's okay. Yeah, it is visible. Yeah. Please keep asking questions, because this is the practical application of Vedanta, and it affects positively all aspect of our life: physical health, our mental health, and our spiritual goal. So it's a very important thing. I'll just read out, because I have just made it. What is our aim of studying Vedanta and how to attain that? The aim is self realization or God realization or moksha from deaths and births, freedom from clutches of Maya and its sufferings. Now, the question arises, why should I strive for self realization or God realization or moksha? A lot of people ask this question ki, what is wrong with this world? If I keep doing good, stay away from doing wrongful acts, and then keep getting a life with riches to fulfill all my desires, is it not better than getting moksha? Now, first of all, we have to understand that this moksha or self realization is not in vacuum. It's a most blissful state without any craving, and it is eternal, and that is our true nature. Instead of trying to get that eternal blissful state, we are actually chasing the same state in happiness of this world. Why are we looking for happiness all the time? This is because this happiness, this eternal happiness, this blissfulness somewhere is there, recorded in our psyche, in our basic structure, and which keeps on driving us towards more and more happiness. Now, the challenges into, if we, even if we do good things, what are the challenges and what are the pitfalls? The forces of nature, the sattva, rajas, and tamas, these three forces are always acting on us. This is like atmospheric pressure. It's not that it is working at some time and it is not working at some time. Every time, on all the people, whether you are a student of Vedanta or whatever you are, these forces are always acting on us. Then
coupled with that, our past tendencies, this is very important. Past tendencies are those tendencies that we develop over so many generations, so many our incarnations. So whatever we do in our life, whatever we experience in our life, any life, that gets recorded in our subconsciousness. As I have told in this session earlier also, that consciousness actually reflects in three different states. The first is waking consciousness, what we feel, what we are now. Like I am feeling that I am a human being, I am a male, and I have this personality, and whatever this construct, that mental construct I have got of myself, this is pertaining to waking state. Now there is another state, that is our subtle nature, that is dream state, that is coming from subconsciousness. So this is subconsciousness which actually controls most of our Actions. destiny. Whatever happens to us, whatever actually we do, whatever our habits are, whatever, whether we are sick or we are strong physically right from the beginning of our life, this is all coming from our subconsciousness. And whatever we are storing today in our subconsciousness, knowingly or unknowingly, it is going to affect our future, whatever is going to happen in future. So these past tendencies are very, very important, much more important than the forces of nature. This we have to understand. And these past tendencies decide 65% of whatever happens in our life. 65%. That is what actually I read in one of the discussions of some great people. So it is not my figure, I have taken it from there. And our thinking and our actions are affected by that. The forces of nature act on the world as a whole too. Now these forces are not only acting on me as an individual, it is working on the entire world also, entire in society, entire nation. And because of that, there is a group phenomena, whole some phenomena, that is the whole group is affected by those forces of nature. So not only on an individual soul, and that brings up new challenging situations that makes it difficult to ensure that my mind and actions will always stick to the right path. I think it is very clear. It is very easy to fall into tamas if all rajasic desires I have are easily fulfilled. If you remember what happened to the Mughals, the Mughal kings, they came here from a place where nothing was there with them. They had to struggle to survive. And here, when they came and conquered India, they got all the riches. So they stopped doing any rajasic action, and they fell into all tamasic activities. So if all rajasic desires are easily fulfilled, then I will fall into tamas, and that starts our downfall. Similarly, the creation is Rajas Pradhan. This whole creation has been made in such a way that Rajasic forces are stronger in nature as compared to Tamasic and Sattvic. And tremendous Rajasic forces leading to creation of new desires and related activities. That is why if you just analyze your mind, if you just analyze your thoughts, you will find that if you fulfill one desire, the new desire comes up. And still new desire. You keep on going after one desire after the other desire. This is because of the nature of Rajasic forces which are acting on us. In fact, the thought of enjoying worldly pleasure instead of choosing moksha is the proof
that Rajasic forces are more powerful within us. You try discussing with any other, you know, non-Vedantic people. They will start thinking that you have gone crazy. They will not appreciate what you are thinking, that is whatever you are doing is right. And this is only because of these Rajasi forces which are acting on them. If we are in clutches of Rajasic forces, then it would keep creating unending new desires, because fulfillment of one desire does not lead to quenching of desires. Desire quenching, this fulfillment of desire leads to further desires. It is opposite to whatever we know normally, that if we fulfill something then it should stop there. It's not. The desire fulfillment acts like feeding the fire. The more you feed the fire, the more the fire, the bigger the fire becomes. And our efforts to fulfill those desires increases, and that means more increase in Rajasic tendencies within us. Now, how does it affect us? We are actually engraving in our subconsciousness more and more Rajasic tendencies. Every time we indulge in Rajasic tendency, if I do anything which is actually fulfilling my Rajasic desire, then what I am doing? I am actually writing again and again on my consciousness. This memory gets etched in my consciousness, and this memory becomes deeper and deeper. It is becoming more and more stronger. Yes, sir. Aditya? If I understand correctly, Naresh ji, all the advancement human race has made, scientific, all those discoveries, inventions, are they the result of Rajasic forces? Yes, sir. These Rajasic forces are the main, because actually Rajas only actually impels you towards worldly activity. So Rajasic forces are not bad, but thing is that it will keep you in that cycle. Everybody can say that if the Rajasic forces will not act, then there will be no invention, there will be no factory running, or all these economical activities, and everything will stop. Yes, Rajasic things are important, but the problem is that it keeps us bound in our realm, in that realm. Seema ji, you wanted to ask something? नहीं हाँ इसमें भी तो ये है ना कि तप होता है ना, इन्वेंशंस में जो साइंटिस्ट होते हैं उनका तप होता है, और हमारे ऋषि मुनियों ने भी तो तप ही किया है, उन्होंने भी तो ये इन्वेंशंस किए हैं। ये हाँ, सब जो सब चीजें दी हैं वो उन्होंने ही तो दी हैं, और उनके तप के कारण हुआ है सारा। तो इसको मतलब एक्चुअली क्लैरिटी करना। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि कहाँ पे ये खत्म हो जाता है राजसिक और तामसिक शुरू हो जाता है, और कहाँ पे राजसिक खत्म होकर के सात्विक बन जाता है, ये भी बड़ा थिन लाइन है समझने के लिए। काफ़ी बढ़िया आपने पॉइंट उठाया है। उसमें ऐसा है कि अगर हम ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, अगर आई एम स्पेंडिंग माई टाइम इन लेबोरेटरी, आई एम स्टडिंग एंड आई एम डूइंग रिसर्च, और इवन आई एम वर्किंग हार्ड फॉर द पीपल, देन एक्चुअली इट इज सात्विक। लेकिन ये लाइन बहुत ही थिन है कि कहाँ पे वो हम अपने डिजायर फुलफिलमेंट के लिए कर रहे हैं और कहाँ हम पूरे संसार के लिए कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम इज देयर, ऑल द फोर्सेज आर हैविंग सम यूटिलिटी, दैट इज व्हाई दे आर देयर, इट्स नॉट दैट। हाँ, इसमें भी ये है कि जैसे कि हम अगर उसमें जैसे कि इन्वेंशंस का है, अगर हम उसमें इसमें लग जाते हैं कि नहीं हमें ये अवार्ड मिलना, अवार्ड के लिए है या कुछ मनी के लिए है, हाँ, तो फिर हाँ तो वो उसका मतलब फिर वो चेंज हो जाता है। हाँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। द इंटेंशन जो है, जिस इंटेंशन से आप कर रहे हैं काम, अपने आप में कोई भी एक्चुअली टेंटेड नहीं है। अपने आप में हर काम जो है वो बिना टेंट, वो कोई टेंटलेस है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम उसमें अपना इंटेंशन जोड़ देते हैं। वो इंटेंशन ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब जैसे आपको याद होगा कि अर्जुन जब लड़ाई के मैदान में जा रहा है, तो किसी की हत्या करना से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, लेकिन वहां पे भगवान खुद बोलते हैं कि यू गो एंड किल योर ओन गुरु, यू गो एंड किल योर ओन ब्रदरन, बिकॉज द इंटेंशन इज टू सेव धर्मा। So that is a higher goal. So that intention actually changes everything.
if he would have fought with the intention of grabbing the power or grabbing the throne, then Arjuna would have been bound. That is what the whole of Bhagavad Gita actually tried to tell us. So the intention is very, very important. But if you see, most of our work actually fall into Rajasic category. Let us not fool ourselves. Most of the things that इसमें एक चीज और मेरे को बोला कि डिजायर्स भी क्या रासिक होती है सात्विक होती है कि अगर रासिक डिजायर है तो आई थिंक कि वो फिर उसका एंड नहीं होता है वो मिलेगी तो आपकी जो हैप्पीनेस मिलेगी वो शॉर्ट टर्म होती है फिर आप दूसरी डिजायर के लिए लग जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। जैसे अभी हम लोग किसी ना किसी डिजायर के कारण यहाँ पे हैं, ठीक है ना, तो अभी जो हम कर रहे हैं वो सात्विक कारण है उसका, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है हमारे एक्चुअली इनलाइटमेंट के लिए। हम सही और गलत क्या है उसके बारे में सोचना चाह रहे हैं, हम अपना आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सो इट्स ए सात्विक डिजायर कि हाँ ठीक है, हमें ये वेदांत का ज्ञान प्राप्त हो जाए। Nareji, most of the inventions are out of the curiosity and just to explore the nature, not for earning money or to satiate the desires. These were only out of the, nature's curiosity, what is there, just to explore that. So I will consider that most of the inventions happened only by exploring the nature, and those will not fall into the category of Rajasic. I think they will be Sattvic also. Some of them are Sattvic also, but some are Rajasic also, because those who are doing some, जो एक्सपेरिमेंट करके और उसको इम्प्लीमेंट करके साइंस के उनको इंजीनियरिंग में कन्वर्ट करते हैं फॉर अर्निंग मनी, एट द सेम टाइम दे आर सर्विंग सोसाइटी ऑल्सो। देखो ऐसा है कि अगर किसी ने अगर बनाया व्हील लाया, कोई व्हील से कार बनाई, कार इज सर्विंग सोसाइटी, व्हीकल इज सर्विंग सोसाइटी, दे आर डूइंग गुड फॉर सोसाइटी ऑल्सो। या सिंचाई का कोई साधन बनाया, पंप बनाया, तो दे आर सर्विंग सोसाइटी ऑल्सो। तो दोनों है, उसमें पैसा भी है या अपना इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी है एंड सर्विंग सोसाइटी भी है। हाँ सर, ये एक्चुअली बिल्कुल क्लियर कट इसका हम डिमार्केशन हम नहीं कर सकते कि ये राजसिक ही है और ये सात्विक है। हमें वो कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा कि हम किस लिए कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड कि इंटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वॉट एवर वी डू। ऑल द वर्क दैट वी डू, ऑल द एक्शन वी टेक, all the actions themselves are tentless, they don't bind us, only our intention binds us. That is what actually Vedanta says. सर राजसिक की थोड़ी डेफिनेशन थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कैसे डिफरेंशिएट करें सात्विक से राजसिक? वो आपका अगर वर्ल्डली डिजायर है, वर्ल्डली डिजायर का मतलब वो डिजायर जो आप अपने सेंस ऑर्गन से किसी हैप्पीनेस को भोगना चाहते हैं, ठीक है सर। अगर उस तरह का डिजायर है, अगर आपके पास कोई ऐसा मानसिक अगर आपके पास डिजायर है कि जिससे कि आपको दूसरे के ऊपर शासन करने की इच्छा हो, किसी के या अपना कुछ बड़ा दिखाना, नेम फेम मनी, एंड इवन इफ यू आर डोनेटिंग फॉर योर नेम, दैट इज आल्सो राजसिक। हाँ, दैट इज व्हाट आई सेड कि अपने आप में कोई एक्शन अपने आप में नहीं कर सकते कि हाँ मैं दान दे रहा हूँ, क्योंकि दान देने में भी काफी एक एक्चुअली अगर आप भागवत गीता को देखेंगे तो दान देने को भी राजसिक कहा गया है। नहीं, गुप्त ज्ञान को नहीं, गुप्त दान को नहीं, जो ज्ञान उस तरह से दिया है कि मैं चूंकि बहुत महान आदमी हूं और मैं दान दे रहा हूं, मेरी बराबरी में नहीं, नरेश, इफ योर दान इज गुप्त दान, इफ योर गुप्त दान मींस यू आर डोनेटिंग फॉर द गुड फॉर एनोनिमसली फॉर द गुड फॉर सोसाइटी, then it is a rajasic, then it is सात्विक। अगर आप बिना किसी से करें तो सात्विक है। और अगर आप कोई भी चीज कर्म, कोई भी काम भी कर रहे हैं, कोई धन अर्जन के लिए कर रहे हैं, या अपने नाम के लिए कर रहे हैं, शासन के लिए कर रहे हैं, नेम के लिए कर रहे हैं, फेम के लिए कर रहे हैं, तो या अपनी डिजायर्स को सशिएट करने के लिए कर रहे हैं, तो दैट इज राजसिक। और सात्विक में तो इज that is not for you, it is for others. It is for others. That is sattvic. Any action which is not for you, any action which is not for you, for pleasure, any action which is not you feel कि मुझे से कुछ
लाभ मिलेगा या खुशी मिलेगी या कोई प्लेजर मिलेगा मेरी सेंस ऑर्गन्स को, that is the सात्विक, that is for others. और उसमें एक आयोटा ऑफ सेंस भी नहीं आएगा कि मैंने दूसरे के लिए किया कुछ। हाँ, उसमें एक्चुअली सर जैसे उसमें अगर हम सात्विक में वो उतना तक भी हम जोड़ सकते हैं कि मुझे खुशी होती है, मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ कि हाँ भाई मैं लोगों को जब हमें हेल्प करता हूँ। नहीं, वो भी खुशी नहीं, एक्शन में आ जाएगी, वो न्यूट्रल है, खुशी भी एक्शन में आ जाएगी। हाँ, तो भी वो सात्विक में आएगा, मतलब वो अगर हम उतने के लिए भी करते हैं तो सात्विक में आएगा। खुशी भी आ गई तो फिर वो जो उधर आ जाएगा, फिर वो बिल्कुल खुशी भी तो आपके प्लेजर सेंस ऑर्गन को कहीं ना कहीं वो कर रही है ना, और कर्म में ऐड हो जाएगा आपके। काफी ये है, थिन लाइन है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं जी। As all our endeavors should lead us towards end of sufferings and should lead us towards our blissful state, this cycle must end. We cannot escape sufferings by sticking to worldly enjoyments and hoping that we will always act rightly and that would keep getting us good and happy lives. तो ये तो सभी लोग जानते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि ये सारे फोर्सेस हैं और इस तरह के जो मतलब हमारे पुराने कर्म हैं वो सब एक्ट करते रहते हैं, तो हम मतलब ये कभी नहीं सोच सकते कि मतलब सब चीज़ ठीक चलता ही रहेगा। आज हम ठीक सोच रहे हैं, आज हमारा दिमाग सही है, लेकिन कल हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसा कोई गारंटी थोड़ी है। नहीं, प्लेजर्स तो सफरिंग लाते हैं, वन साइड इज द प्लेजर एंड अदर साइड उसका जो प्रतिफल होता है वो सफरिंग होता है। सफरिंग और प्लेजर इज द फल, उसका प्रतिफल सफरिंग होता है। बिकॉज इफ यू डू सम एक्सेस थिंग, टेक प्लेजर एंड टेक एल्कोहल और मनी से भी कुछ करते हो, खाते हो ज्यादा, वो दैट ब्रिंग सफरिंग। तो एनी सात्विक, एनी रासिक डिजायर, एक्चुअली सर अगर आप क्लोजली देखेंगे तो इस संसार में कोई भी चीज को आप नहीं भोगते हैं, आप खुद अपने आप को भोगते हैं। बिल्कुल, दैट्स राइट, वो है करेक्ट चीज है कि जो आपको प्लेजर देती है, मतलब यू आर कंज्यूमिंग योरसेल्फ। तो इसलिए जो है देयरफॉर वी मस्ट अटेन गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, मोक्षा टू एंड ऑल सच पॉसिबिलिटीज एंड अटेन आवर इटर्नल पीसफुल स्टेट। मतलब ये एक्चुअली हम लोग नहीं कर पाए तो उससे बड़ा बेवकूफ़ी नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, अब जैसे संसार में जो कुछ भी हैप्पीनेस हमें मिल सकता है, तो ये जो वेदांत गुरु हैं कहते हैं कि दुनिया का सबसे जो बड़ा खुशी है उसको अगर लाख से भी आप मल्टीप्लाई कर दें तो उस ब्लिसफुल स्टेट की तुलना उसको आप नहीं कर सकते, ये इतना ज़्यादा है। तो आप छोटे प्लेयर्स को छोड़ रहे हैं इसलिए ताकि आप बड़े प्लेयर्स की तरफ जाएं और वो इटर्नल हो, वहाँ पे सारे कुछ चक्कर ही नहीं है कि हाँ ये ख़त्म हो जाएगा और दोबारा उससे भी ब्लिसफुल स्टेट की प्रति जाने की इच्छा होगी। इसमें पूछना था मेरे को कि गॉड रियलाइजेशन या मोक्षा के बाद में जिंदगी में क्या परिवर्तन आता है? जैसे हो जाता, मतलब बहुत ही मुश्किल है, पर क्या ये मुश्किल भी बहुत ज़्यादा नहीं है सीमा जी। एक्चुअली ये कर सकते हैं हम लोग, मतलब इसी मतलब इसमें जो है वो आप गॉड से बात भी कर सकते हैं और आप सेल्फ रियलाइजेशन भी कर सकते हैं, ये सब पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ हैं। ठीक है, अच्छा इसमें होने से फ़ायदा क्या होगा, ये क्वेश्चन है ना आपका। नहीं, फायदा नुकसान तो नहीं, मतलब क्या है वो स्टेज थोड़ा मतलब और समझ और उसको डिटेल में समझे। देखिए गॉड रियलाइजेशन जो है, गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन में थोड़ा सा अंतर है। गॉड रियलाइजेशन जो है जहाँ पर कि ईश्वर को सगुण रूप में आपने रियलाइज़ किया है, जैसे अगर हम भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव को हम पा लेते हैं, उनसे वननेस की प्राप्त कर लेते हैं, तो ये एक गॉड रियलाइजेशन जहाँ पर कि एक साकार ब्रह्म है। सेल्फ रियलाइजेशन में साकार ब्रह्म नहीं है, ये निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति है। ठीक है, और मोक्ष जो है वो मोक्ष बहुत तरह के होते हैं, मतलब आपको इस जन्म मृत्यु से मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब वो इट मे नॉट बी एग्जैक्टली गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन, उसके बीच में कहीं पे आप हो सकते हैं। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि आपका सबसे पहले ये होगा कि आपको इस संसार में जो आपका मेंटल स्टेट पहले तो चेंज हो जाएगा, सबसे पहला चीज़।
मेंटल स्टेट चेंज हो जाता है कि मतलब आपको किसी चीज़ से दुख नहीं होगा। कोई आदमी आपके विरुद्ध काम करता है, ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो आपके अपोजिट अगर होता है तो आपको वो दुख होना बंद हो जाएगा। और अगर आप फील करेंगे, जैसे जैसे आप इसमें प्रोग्रेस करिएगा, आप देखिएगा कि आपका जो दुख है वो कम होता जा रहा है, आपका जो रिएक्शन है वो मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है। कोई भी दुख आपको उतना विचलित नहीं कर सकता जो दूसरे लोगों को करता है। सबसे पहला तो उसका आपको ये मिलेगा, आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में शांत रहना सीख लेते हैं और उसी में आपको शांति मिलती है। आप चाहते नहीं कि ये सब इस स्टेट को छोड़ करके हम फालतू की चीज़ों में पड़ें। कोई भी आपको जो है वो चीज़ें जो है अट्रैक्ट नहीं करती। ये दिस कैन बी स्लाइटली, मतलब मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर, जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस जो लोगों को होता है वो दैट जब आ जाता है आदमी तो उसको गॉड रियलाइजेशन होता है कि भगवान है यार, मुझे बचाया, मैं ऐसे ऐसे आई वेंट ऑलमोस्ट आई हैव एक्सपीरियंस दैट देयर वाज समथिंग, मैं डेथ के काल की मुंह में चला गया और वापस आ गया हूँ। नियर डेथ एक्सपीरियंस भी होता है ना लोगों को, दे स्टार्ट रियलाइजिंग दे गॉड है। और नहीं, ये डिफरेंट है सर। वो जो आप बता रहे हैं ना वो तो मतलब फिजिकल एक्सपीरियंस है। आई एम टॉकिंग अबाउट गॉड रियलाइजेशन, जिसमें कि आप गॉड से बात करते हैं। अच्छा वो वाला, अच्छा यू आर टॉकिंग दैट, दैट मतलब इज गॉड। यू रियलाइज मीन्स जब आप चाहें तो गॉड को आप प्रकट कर सकते हैं। मतलब आप उनके अपने दिमाग में आप ला सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं एंड यू कैन गेट वॉट एवर यू वांट। वो है पर गॉड इसमें रियलाइजेशन। तो वही हो गया कि जैसे आप जो है यू आर अहम ब्रह्मास्मि में आपने सारी चीजों को निकाल के ब्रह्मास्मि पार्ट को उजागर कर लिया अपने को, दैट इज हाँ, मेथड। सेल्फ आप रियलाइजेशन में बता रहा था कि मतलब जो अहम, है आप जो है वो बिल्कुल अल्टीमेट में पहुंच सके, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन इज द अल्टीमेट, जहां हाँ पर तो वो हो गया ना कि आप जो है ना यू आर, आपको मतलब जैसे बहुत सारे महान पुरुष होते हैं और जिनकी बहुत असाधारण क्वालिटीज होती है, आप वो बन जाएंगे। हाँ, एक्चुअली मैं वही बताने जा रहा था सर। सीमा जी का जो क्वेश्चन था एक्चुअली, अगर आप ये इसके बारे में पढ़ें कि गॉड रियलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन से क्या होता है, तो इसमें 8 विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं। अब आपके ऊपर निर्भर है कि वो आप विभूति एक्सेप्ट करें या ना करें। मतलब आप एक ही स्थान में बैठे बैठे कहीं और प्रकट हो सकते हैं, ये आपको पावर मिल सकती है। आप जितने सुपरफिशियल। भी लोग हैं जो आपके सटल लोग हैं उसमें आप कहीं भी जा सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं देवलोक होके आता हूँ, आई कैन गो एंड गो देयर एंड हैव ए टूर एंड देन कम बैक। आप नेचर को जो कहेंगे जो सोचेंगे वो नेचर आपका दास हो जाएगी। हालांकि आप वैसा करते नहीं है क्योंकि आपके मन में इच्छा ही नहीं होती। लेकिन अगर आप चाहें तो आप नेचर को अपने हिसाब से बदलने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं और नेचर इज़ बाउंड बाय दैट, क्योंकि वो एक्चुअली इट इज़ स्लेव टू आवर ट्रू नेचर। यहाँ उल्टा होता है कि हम लोग जो है वो नेचर के भरोसे जो है बैठे रहते हैं। आपके लिए फेट मायने नहीं रखता, आप किसी को भी हील कर सकते हैं, आप अपने आप को हील कर सकते हैं, जो कि मतलब इंस्टेंटेनियसली कर सकते हैं। ये सारे चमत्कार आप कर सकते हैं। मतलब उसमें वो जो पतंजलि योग सूत्र है उसको आप पढ़िए, उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो विभूतियाँ जो हैं वो आपके अंदर पैदा होती हैं। हालांकि जिन लोगों को ये रियलाइजेशन होता है वो इन विभूतियों को त्याग देते हैं। मतलब जो विभूतियाँ हैं जिनके बारे में बता रहा हूँ, उन लोगों ने इसको मतलब विष्ठा की तरह जो है वो उसकी तुलना की है। एक इसमें मतलब जो है वो रियल स्टोरी है। रामकृष्ण जी का एक बड़ा अच्छा भक्त था, मतलब उनका ये था डिसाइपल था, और रामकृष्ण को कहीं पे जाना था। मतलब वो अपने गांव जो है वो उनको वापस जाना था, कहीं पे वो प्रवचन वगैरह देने के लिए आए थे और वहाँ से उनको वापस जाना था। लेकिन वो प्रवचन देने वगैरह में इतना मशगूल हो गए, मतलब उस कीर्तन वगैरह जो चल रहा था, कि रात काफ़ी हो गई। और उस ज़माने में इतनी सारी बिजली वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तो बिल्कुल अंधेरा था। तो लोग जो हैं वो लालटेन वालटेन ले करके आ गए कि रामकृष्ण को हम पार कराएं। तो उनमें से एक डिसाइपल जो था वो बोलता है कि गुरु महाराज, मतलब मैं आपको तो ऐसे ही रास्ता दिखला सकता हूँ, ये सब लालटेन वालटेन ले आने की क्या ज़रूरत है। और ये रिकॉर्डेड है, आप इसको पढ़ सकती हैं, जो कि इनके जो है इनकी कथामृत में लिखा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो योगी थे, वो सिद्ध योगी थे, उन्होंने अपने पीठ के ऊपर फोकस करना शुरू किया और उससे एक बहुत तेज लाइट निकली। और वो लाइट इतनी तेज थी कि उनको सारा रास्ता जो है वो
इनको दिखा। तो खैर उस समय रामकृष्ण ने कुछ नहीं कहा, वो चले गए। वो जो ये था अपने शिष्य को वो मतलब डिमोरलाइज नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन बाद में जब अगले दिन वो लौटते हैं, उस शिष्य से मुलाकात करते हैं, तो बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, और इसलिए उनके पीठ पे हाथ फेरते हैं और वो सिद्धि उनकी जो है वो हटा लेते हैं। हाँ, सिद्धि कहलाती है। हाँ, तो ये सिद्धियां जो हैं वो आपको मिल जाती हैं, और लेकिन ये सिद्धियां जो हैं वो अल्टीमेटली ये परेशान करने वाली, यू डोंट वांट ऑल दिस सिद्धीज एंड ऑल, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गॉड रिलेशन से, मतलब यू कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू लाइक, बिकॉज आप गॉड के ही आप समकक्ष हो गए, तो फिर आपके उसमें क्या नहीं रहा, ठीक है। सात्विकता में आ जा, फिर आदमी सात्विक हो जाएगा, फिर इच्छा क्रिएट हो जाएंगे, फिर गड़बड़, वो सॉरी उसमें राजसिक में आ जाएगा ना फिर तो आदमी। हाँ, वो एक्चुअली डर रहता है कि आप मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब उसमें फंसी जाएं, फिर मतलब एक तरह से आप स्लिप कर, हाँ यू कैन स्लिप इनटू राजसिक और यू कैन स्लिप इनटू तामसिक, तो हो सकता है ना। तो सिद्धियां जो हैं वो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये मिलेंगी आपको, मतलब अगर आप रियलाइज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास आती हैं। ये भगवान बुद्ध को भी हुआ था। आप जो है बहुत मतलब अद्भुत शक्ति वाले हो जाएंगे, हाँ, महान पुरुष हो जाएंगे, और आप जो है ना, आप यू कैन हैव ए इंट्यूशन ऑल्सो कि ये होने वाला है इसके साथ, या ये हो जाएगा, हाँ, ये हाँ, हो वो जाएगा। इंट्यूशन वगैरह तो सर आपको मतलब मिडिल एज, मतलब जब आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे तो आपको शुरू हो जाता है वो, मतलब कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाला है किसी के बारे में। अच्छा, दूसरा ये है कि विदाउट गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन यू कैन गेट मोक्ष ऑल्सो, जैसे गज मोक्षम की कहानी है, जो गज हाँ, मोक्षम वो की जो किसी जैसे कहानी है, गुरु की कृपा हो गई आपके ऊपर कि भाई चलो इसको मोक्ष हाँ, गज मोक्षम कहानी प्रहलाद के साथ हुआ, उसके साथ हुआ, उसके गज मोक्षम की भी कहानी है, जैसे उन्होंने आके उसको मगरमच्छ का सर काटा था और हाँ। उसको मोक्ष दिया था। तो इसको प्राप्त कैसे किया जाए? तो वेदांत के बहुत सारे स्कूल हैं, मतलब हर गुरु का अपना एक तरीका होता है और वो अपना तरीका सबको बताता है। तो मैंने जो लिखा है इसमें बहुत सारे जो आचार्य हैं और हमारे मोस्टली जो हमारे गुरु हैं, उनका जो मतलब जो गाइडलाइंस है, जो कुछ भी वो कहा गया है, उसको मैंने समराइज़ करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे तो वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, मगर अल्टीमेटली उनका एम एक ही है, और वो मैं बताऊँगा कैसे वो एक ही है। अब एक जो है वो रूट है एक्सट्रीम अद्वैत वेदांत। एक्सट्रीम अद्वैत वेदांत जो है वो ये कहता है कि साहब आपको कुछ भी एक्वायर करने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी हो पहले से। देयर इज वन स्कूल ऑफ एक्सट्रीम अद्वैत वेदांता टॉट बाय ऋषिज लाइक अष्टावक्र एंड रमणा महर्षि। दिस स्कूल सेज you don't have to attain anything, you already are the blissful state of Brahman. It is not something foreign which needs to be attained or acquired. You needn't do anything but develop a strong unfailing faith. आप देखिए इसको बड़ा समझ लीजिए, you have to develop a strong unfailing faith that you are none but the blissful state of Brahman. अगर आप में ये फेथ हो जाए, अब बिलीफ और फेथ में अंतर है। बिलीफ में क्या होता है कि आप जैसे अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये बिलीफ है, ये कर रहा है कि भाई मतलब ये अगर हमारे स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है और ये लॉजिकल लग भी रहा है तो ये होगा, मतलब ऐसा लग रहा है। लेकिन फेथ में क्या होता है कि वंस यू हैव फेथ देन इट इज अनफेलेबल बिलीफ, मतलब कुछ भी इधर उधर हो जाए तो भी आपका फेथ जो है वो, जब वो बिलीफ हिलता नहीं है तो दैट बिलीफ इज कॉल्ड फेथ। और जब फेथ भी इतना स्ट्रांग हो जाए कि उसके इस मतलब बिल्कुल फेल होने की गुंजाइश ना रहे, तो ये कहते हैं कि यू आर नन बट द ब्लिसफुल स्टेट ऑफ ब्रह्म। तो इसका तरीका क्या है? कहते हैं कि जस्ट निगेट ऑल द सुपर इम्पोज्ड उपाधिज। उपाधिज मीन्स उपाधि क्या चीज़ है ये हम लोग सही ढंग से जान लें। एक्चुअली जो रियलिटी है वो प्योर जो कॉन्शसनेस है, ईश्वर का जो रिफ्लेक्शन है हमारे अंदर, दैट इज अ प्योर कॉन्शसनेस, वही है और उसके अलावा कुछ नहीं है। अब उसके ऊपर सारे के सारे जो है डिफरेंट लेयर्स चढ़ने लगते हैं। तीनों जितने भी आपके राजसिक फोर्सेज हैं वो हैं, आपके मन बुद्धि अहंकार है, उसके बाद 5 महाभूत हैं, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर ऐड होती रहती हैं। इट इज़ लाइक कि कोई आदमी एक बिल्कुल सोचिए कि वो एक सिर्फ एक आदमी है
लेकिन आप देखिए कि जब वो नौकरी करने जाता है, वो मैनेजर, मतलब बोलते मैनेजर साहब हैं, वो स्टेट बैंक के मैनेजर हैं। अब वो स्टेट बैंक का जो मैनेजर है, या हम कहते हैं कि ये जो है वो डांसर है, या ये जो लड़की है वो एक्टर है, या हम कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वट एवर, ये सभी चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली रियलिटी नहीं है, वो एक एग्रीगेट हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, डिफरेंट लेयर्स इम्पोज करके, और उसके बाद एक एग्रीगेट तैयार होता है, और उस एग्रीगेट को हम एक नाम दे देते हैं, जिसके बारे में ये जो हैं वो हमारे रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ये जो है वो नाम और रूप, इससे कि सारा जो है वो माया का खेल चलता रहता है। तो ये एग्रीगेट को हम लोग उसको एंटिटी मान लेते हैं। हम ये मानने लगते हैं कि ये डॉक्टर जो है वो इंजीनियर से अलग है, ये डॉक्टर जो है वो कॉमन आदमी से अलग है, जबकि एसेंस अगर आप देखेंगे तो सब में वही है, सिर्फ उसके ऊपर जो है डिफरेंट लेयर्स चढ़े हुए हैं। तो आपको ये सारे लेयर्स हटाने हैं। आई negate all the doubts which make you believe that you are not Brahman. Keep affirming within yourself, Aham Brahmasmi. I am the non-dual, absolute, blissful Brahman. I am free from all karma. आप लोगों को जानकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी कर्म आपका नहीं है, क्योंकि प्योर कॉन्शसनेस कभी टेंटेड नहीं होता। लेकिन चूंकि हम जो है वो अपने एक आई जो हमारा है, जो अहंकार है, उससे काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिफाई करते रहते हैं अपने आप, और वो जो आई है वो सबको जोड़े रखता है। वही आई जो है, वही जो अहंकार है, वो हमें अपने पास्ट कर्म से जोड़ता है, वो हमें करेंट कर्म से जोड़ता है, वही हमारे डिज़ायर से हमको जोड़ता है, वही हमारे एक्शन से हमको जोड़ता है। एंड दिस विल लीड यू डायरेक्टली टू सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आप इससे अपने आप को फ्री कर लें तो ये सारे गुरु कहते हैं कि आप जो है सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त कर लेंगे। दिस स्कूल निगेट्स द नीड ऑफ इवन मेडिटेशन एक्सेट्रा। अब आप सोचिए कि जितने भी पाथ हैं अद्वैत वेदांत के, इनवेरिएबली सभी में मेडिटेशन है, लेकिन ये जो एक्सट्रीम अद्वैत वेदांत है वो कहता है कि इसकी भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ निगेशन ऑफ नॉन ब्रह्मन एंड कंप्लीट फेथ दैट यू आर अहम ब्रह्मास्मि, अगर आपके अंदर डेवलप हो जाए तो आप सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त कर जाएंगे। दिस स्कूल निगेट्स द नीड ऑफ इवन मेडिटेशन एटसेट्रा और स्टेइंग अवे फ्रॉम द वर्ल्डली एक्टिविटीज। ये भी नहीं कहता कि आप ये सब काम मत करिए या वो मत करिए, आप करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है, ब्रह्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। नो नीड ऑफ एनी एक्शन और इनएक्शन, नो नीड ऑफ एनी गॉड सेल्फ, नो नीड ऑफ एनी वरिंग अबाउट कर्मा एटसेट्रा। अब ये बहुत ही लॉफ्टी जो है वो फिलॉसफी लगती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है वो हम देखेंगे। अब रमना महर्षि का एक जो है टेक्निक है वो हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं। ये काफ़ी फेमस है एक्चुअली। रमना महर्षि जो हैं वो तमिलनाडु के या केरला के, आई थिंक तमिलनाडु के, हाँ तमिलनाडु, यस तमिलनाडु के एक बड़े, हाँ ये काफ़ी बड़े ऋषि हुए हैं, और इनकी किताब है नान यार, हु एम आई, और ये इनका टेक्निक भी था कि किस तरह से आप अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन तक ले आ सकते हैं। आई जस्ट रीड इट आउट। रमना महर्षि एक बहुत बड़ी लंबी फॉलोअर्स है, बहुत सारे लोग फॉलोअर्स हैं। इंडिया में नहीं है, इंडिया में तो इनके 10% लोग हो गए, 90% लोग बाहर के हैं। मोस्ट ऑफ हिज फॉलोअर्स आर फ्रॉम अब्रॉड। इफ एनीवन वांट्स टू लर्न हिज पाथ एंड फॉलो व्हाट ही सेज, then he should read books based on his teachings. The core of his teachings is compiled in one such book, Nan Yar और Who Am I. अब ये किताब भी इन्होंने खुद नहीं लिखी है, रमना महर्षि ने अपनी से खुद किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके जो शिष्य हैं उन लोगों ने उनकी टीचिंग से ऊपर किताब लिखी है। देयर आर सेवरल बुक्स, आप बहुत सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे जो कि उनके शिष्यों ने लिखी है उनकी टीचिंग्स के ऊपर। रमना महर्षि सेज that you start finding who is actually claiming to be the I within you. Who am I? आप इसके पीछे जाइए कि ये I कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, कौन कह रहा है कि मैं, जो मैं कह रहा है वो कौन कह रहा है, ठीक है। एंड दिस विल लीड यू टू सेल्फ रियलाइजेशन। तो इसका पूरा प्रोसीजर क्या है इन मेथोडोलॉजी में? द सीकर शुड ट्राई टू रीच दैट विच इज क्लेमिंग एज द I विद इन द सीकर। हमारे अंदर कौन है जो कह रहा है कि मैं हूं?
बाय गोइंग डीप इनटू हिज माइंड। आप शांत होएं और उसको देखने कोशिश करें कि ये आई किधर से एराइज हो रहा है, कहाँ से ये आई की उत्पत्ति हो रही है। ये दिस थॉट ऑफ आई इज एराइजिंग फ्रॉम व्हाट एग्जैक्टली, व्हाट इज दैट विच इज गिविंग ऑफ दिस आई। कीप इंक्वायरिंग एंड निगेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम वेयर द आई डज नॉट इमिनेट। इट इज़ वेरी इजी जब आप इसको करेंगे, बहुत ही सिंपल क्रिया है। मैं आज आप लोगों को कहूँगा कि आप जरूर इसको करके देखिए। आप देखिएगा कि बहुत ही आसानी से आप पता कर लें कि ये जितना ही बॉडी है, ब्रेन है, हार्ट है, माइंड है, फटाफट ये कहता जाए कि नहीं यहाँ से तो आई नहीं निकल रहा है। उसके बाद फिर आप जाएंगे अपने इसमें मेमोरी में आप जाएंगे, फिर आप जहाँ से थिंकिंग हो रहा है वहाँ से आप जाएंगे, आप देखेंगे कि आई जो है कहाँ से निकल रहा है, ये धीरे 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 सब के सब गायब हो जाएंगे। ट्राई इट एंड सी व्हाट इज कमिंग and negate everything whatever is coming which is from where I is not arising, as I is the agent of what you really are। अब ये I कहाँ से कर रहा है? क्योंकि I ही जो एजेंट है उसका, जो मालिक है, जो मास्टर है, उसका एजेंट जो है वो I है। अगर हम I के पीछे जाएंगे तो वो मास्टर तक हमको ले जाएगा। It will finally lead us to that। It is like by following the trail of smoke, you reach the fire। तो आई जो है वो रियलिटी नहीं है, लेकिन ये रियलिटी से ही एराइज हो रहा है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे, अगर आप उसको ढूंढना कुछ कि आखिर ये आ कहाँ से रहा है, देन इट विल लीड टू सेल्फ रियलाइजेशन। एक्चुअली इसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड थोड़ा सा ये कर दूं कि जब आप इस तरह से पीछे उसके जाएंगे तो जितनी चीज़ें आप एक्चुअली अपने आप के अंदर सोचते हैं कि ये हम हैं, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो माइंड हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब के सब हाथ खड़े कर देंगे। थोड़ी देर के बाद वो आप पाएंगे कि वहाँ पे कोई भी नहीं है जो कि क्लेम कर रहा है कि मैं हूँ। लेकिन इस तरह से जब आप इंक्वायर पूरी तरह से करेंगे, सारे मतलब पूरे दिमाग से लगा करके आप करेंगे, तो यू विल फाइंड दैट एक कॉन्शसनेस है जहाँ पर कि मतलब आई जो है वो गायब हो जाता है। मतलब एक पूरा कॉन्शसनेस के आप जैसे कि एक व्हाट यू से कॉन्शसनेस पूरा घेर लेगा आपको। मतलब आप सिर्फ प्योर कॉन्शसनेस के एक स्वरूप बन जाएंगे। तो दैट इज़ व्हाट एक्चुअली यू आर। ये वहाँ तक ले जाता है आपको। मतलब ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। प्रॉब्लम है इसको सस्टेन करने की, ये प्रॉब्लम है। इसमें एक चीज हमें पूछना था कि जो इंक्वायर कर रहा है वो कौन है फिर? जैसे आप कह रहे हैं कि जो देखेगा उसे, हाँ हाँ, इंक्वायर जो कर रहा है एक्चुअली, जो इंक्वायर कर रहा है वही है। जो इंक्वायर कर रहा है वही आप ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। जो इंक्वायर कर रहा है ना वो कॉन्शसनेस है, और वो फाइनली इंटेलेक्ट का सहारा लेता है। जब आप इसको पूरी तरह से आप मतलब अलर्ट हो जाएंगे तो क्या होता है कि वो जो कॉन्शसनेस, जो प्योर कॉन्शसनेस है, वो अपने आप को इंटेलेक्ट से आइडेंटिफाई कर लेता है। तो वहाँ पे सिर्फ इंटेलेक्ट रखता है, वो दिखता है कि नहीं ये नहीं है, वो है, वो यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से नहीं आ रहा है, यहाँ से भी नहीं आ रहा है, वहाँ से। लेकिन इसमें चक्कर में आप जाते जाते जब आप काफ़ी दूर तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ वहाँ पे अवेयरनेस है। एक अजीब सा आपको लगेगा कि आप मतलब यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। मतलब यू भी गायब हो जाता है, मतलब वहाँ आई भी आपका गायब हो जाता है। ये नरेश जी, वो जो इनिशिएट तो आपका इंटेलेक्ट ही करता है ना, कि हु एम आई, तो इंटेलेक्ट स्टार्ट करता है इसको, बट इंटेलेक्ट और जो आई सब मतलब एक हो जाता है फिर वो आई। एक्चुअली सर वो कॉन्शसनेस किससे आइडेंटिफाई करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉन्शसनेस जो है अभी हमारा वो जो फॉल्स आई है उससे आइडेंटिफाई कर रहा है। जो नहीं वो ठीक है, वो जो शिवाजी जो पूछ रही है कि कौन इंक्वायरी कराता है, तो पहले शुरू में तो इंटेलेक्ट ही कराता है ना। आपकी इच्छा तो इंटेलेक्ट से ही शुरू होती है। इंटेलेक्ट से ही हो रही है, वो तो इंटेलेक्ट से ही एक्चुअली। लेकिन जो कर रहा है, जो एक्चुअल जो एक्टर है इंटेलेक्ट के पीछे, वो तो कॉन्शसनेस खुद है। हाँ, वो बाद में पता लगेगा व्हेन यू गो ऑन नेगेटिंग एवरीथिंग। तो आप ऐसे स्टेट पे पहुंचेंगे जहां पर कि जो है वो आई जो है गायब ही हो जाएगा। वो जितना आप ढूंढेंगे ना उसको तो पता चलेगा कि आई तो गया। नेत 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 कह के आप जो है हाँ, और उसके बाद जो है वो प्योर मतलब अवेयरनेस बच जाती है। उसको अगर आप होल्ड कर पाए तो बस काम बन गया। लेकिन होल्ड करना करके डेली प्रैक्टिस की बात
जस्टिस का डेली प्रैक्टिस है ना। हाँ, करेक्ट। तो एनालिसिस ये ऑफ दिस पाथ, अब ये जो एक्सट्रीम अद्वैत का जो पाथ है वो कहाँ तक जो है वो हमें ले जाएगा या कहाँ तक ले आ सकता है। थियोरेटिकली व्हाट द स्कूल्स teaching extreme Advait Vedanta say is correct. There is no doubt that we are Brahman. There is no doubt that we don't have to attain anything which is not already within us. We don't have to become what we are not. प्रॉब्लम तब होती है जबकि हम वो बनने की कोशिश करें जो हम नहीं हैं। जैसे अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें बड़ी मेहनत करेंगे कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ ये जानना है कि मैं कौन हूँ, तो इसमें कौन सी मेहनत करनी है? इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। तो नो कर्मा बिलोंग्स टू अस। सबसे पहली बात यह है कि ये जो कर्म वगैरह जो है, जो कि जिससे हम बंधे हुए हैं, जो कि अहंकार हमारा बांध के रखे हुए है, वो हमारा है ही नहीं। इसलिए कर्म हमारा खत्म हो जाएगा और तब हम ब्रह्म को प्राप्त कर पाएंगे, ये धारणा बिल्कुल गलत है। और ये एक्चुअली ये पार्ट कहता है एक्सट्रीम अद्वैत वेदांत कि नो कर्मा बिलोंग्स टू यू एंड दैट इज प्योरली करेक्ट, इसमें कोई संदेह नहीं है। as we are ever free from karma because karma belongs to nature. Yes, they are right at least theoretically. यहाँ पे नॉट होना चाहिए, सॉरी। बट नरेश जी ये जो है ना जस्ट टू प्रैक्टिकल अप्रोच टू, हाँ वो मैं बताता हूँ कि ये प्रैक्टिकल नहीं हो जाता है, क्यों, अभी इसी पे आ रहा हूँ। हाँ हाँ। बट दिस पाथ इज लाइक क्लाइंबिंग ए माउंटेन वर्टिकली टू द पीक। अब ये रास्ता कितना कठिन है, क्योंकि मैंने खुद ट्राई करके देखा हुआ है। ये एक स्टेट पे ले जा करके आप अटक जाते हैं, तो ये आपको नहीं ले जा सकता वहाँ पे जब तक कि आप स्पिरिचुअली इतने एडवांस नहीं है। अब ये कौन कह रहा है? कह रहा है कौन? रमणा महर्षि कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा। मतलब महाराजा जनक कर, ये लोग ऑलरेडी इतने ऊंचे उठे हुए हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम है? वो तो सोचेंगे तो वही पहुंच ही जाएंगे वहाँ पे। लेकिन मतलब वो एनपीसी ना सोचना शुरू कर दें तो ये बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये रास्ता जो है वो मतलब आसान तो लग रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट है। इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर कॉमन वर्ल्डली पीपल टू फॉलो दिस पाथ। नहीं बेटा, ये आपको इस जन्म में एक लेवल ऊपर, 2 लेवल ऊपर कर देगा। 1-2 लेवल ऊपर कर देगा। तो मतलब आप जो है वो मतलब कहाँ तक पहुंचेंगे और फिर कहाँ तक जाएंगे, इसका कोई गारंटी इसमें नहीं है। आपको बिल्कुल ही न्यूट्रल कर देगा, मतलब आपको बिल्कुल न्यूट्रल कर देंगे, आपको न्यूट्रलिटी में ला देगा। कोई कहेगा यार हो गया है, बिल्कुल ही ना कुछ बोलता है ना कुछ कहता है मैं कुछ हुई नहीं, कहाँ जाना, जहाँ भगवान ले चलेगा वही चलेंगे। So this path is for those who are already well elevated spiritual souls. Yes, जो yes. already spiritual souls हैं उनके लिए सही बात है। Who have already conquered their past evil tendencies, who have conquered their worldly desires, etc. ये सब चीज़ें अगर already आप कर चुके हैं तो अब आप रेडी हैं। फिर क्या है, फिर तो आप दौड़ेंगे तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी डेवलप्ड स्पिरिचुअल विंग्स, जिनके विंग्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं और वो उड़ सकते हैं फ्रीली। तो उनको सीधा उड़ने में क्या प्रॉब्लम है? उड़ेंगे और सीधा माउंटेन के पीक पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारे पास विंग्स नहीं है। इन केस ऑफ रमना महर्षि's methodology, reaching and staying in that state from where I emanates is very very difficult because of our past impressions and tendencies keep interfering and wavering us from seeking. एक्चुअली होगा क्या कि आप पहुंचेंगे थोड़ी देर और विदिन सेकेंड्स या फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड यू विल फाइंड कि दूसरा कोई थॉट आपके दिमाग में आया और आपको मतलब हिला के चल दिया। फिर आप उसको पकड़ने जाएंगे, उस थॉट के उसको करेंगे तो फिर नया थॉट फिर जनरेट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली लड़ाई जो है आपकी चलती रहेगी। अब इसके लिए जो मैक्सिमम जो गुरुज हैं जो वेदांत के, वो उन्होंने कहा है कि भाई ग्रेजुअली करो, स्लो करो, लेकिन मतलब सर्टेनली यू विल रीच देयर, ये है। तो वो क्या तरीका है वो बताते हैं। What stops us from realizing what we really are? ये पहले जानना ये हमें है कि आखिर ये कौन सी चीज़ है जो हमको रोकती है अपने आप को रियलाइज करने के लिए। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो आवर डिजायर्स एंड आवर पास्ट टेंडेंसीज, ये मेन कल्प्रिट्स हैं,
Added to that is the constant action on us by the three forces of nature, Sattva, Rajas and Tamas. What is herein below is based on my study of various literatures on Advaita Vedanta and teachings of my Guru. अब आप इसमें देखिए कि अगर आप सिंसियरली चाहते हैं कि इस रास्ते पर आगे बढ़ें तो आई विल स्ट्रांगली एडवाइज यू टू हैव ए गुरु, क्योंकि इस पाथ पर सक्सेसफुल अगर बिना गुरु के कोई हुआ है तो इस संसार में सिर्फ एक ही उदाहरण है और वो है रमणा महर्षि का। उसके अलावा मैंने आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखा कि जिसने सेल्फ रियलाइजेशन या गॉड रियलाइजेशन प्राप्त किया हो बिना किसी गुरु के। ठीक है, अब गुरु कौन हो सकता है? ये आजकल तो कोई भी आदमी अपने आप को गुरु डिक्लेयर कर देता है। ये गुरु क्या चीज है? गुरु बहुत सारे गुरु हैं आजकल। हाँ, सबसे पहले तो ये हम लोग समझ लें कि गुरु और टीचर में अंतर है। हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अभी हम लोग सीख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग किताब से सीख रहे हैं, तो वो जो किताब है या जो ज्ञान है, या मान लीजिए कि कोई आदमी आपको बता रहा है, तो वो एक टीचर हो सकता है लेकिन गुरु नहीं हो सकता। गुरु होने की कुछ क्वालिफिकेशन है। ये गुरु गीता है जिसके बारे में कहा कि गुरु कौन होना चाहिए, तो वो हमें जानना जरूरी है। गुरु का खुद ही सेल्फ रियलाइज या गॉड रियलाइज होना जरूरी है। ये नहीं कि कोई आदमी अपने आप डिक्लेयर कर दिया कि भैया हमें तो बहुत अच्छा वेदांत आता है और वो गुरु बन जाए। वो गुरु नहीं हो सकता। जब उसमें साफ साफ कहा है इस रास्ते पे कि ओनली ए पर्सन विथ आईज एंड नॉलेज ऑफ डेस्टिनेशन कैन लीड ए ब्लाइंड पर्सन टू हिज डेस्टिनेशन। अब मैं अंधा हूं और किसी दूसरे अंधे आदमी को अपना हाथ पकड़ा दूं कि भैया तुम गुरु हो मेरे, तो वो कहाँ ले जाएगा? वो हमें खुद भी गड्ढे में गिरेगा और मुझे भी गड्ढे में गिरा देगा। और तो आप टीचर हैं कि गुरु बन सकते हैं? सर, you are a teacher or you can also be guru? No, sir. I cannot be a Gajanand, guru. you have to decide. I can be considered a teacher, सर। मैं टीचर भी अपने आप को कहना जो है वो मतलब भगवान के इसमें शान के खिलाफ समझता हूँ, क्योंकि मेरा अपना इसमें कुछ भी ये नहीं है, योगदान नहीं है। नहीं यार, आपने मतलब इतना डायरेक्शन दे सकते हो, बता सकते हो। हाँ, तो वो मैक्सिमम अगर आप समझेंगे तो हमें शिक्षक समझेंगे, टीचर समझेंगे। आप गुरु तो खैर सवाल ही नहीं उठता। जब तक सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त नहीं होता, गॉड रियलाइजेशन प्राप्त होने के बाद भी आपको स्पेशल आज्ञा एक्चुअली होती है गुरु से, मतलब ईश्वर से, कि आप गुरु का काम कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे सेल्फ रियलाइज्ड गुरु लोग हुए हैं जिन्होंने गुरु बनना स्वीकार नहीं किया, बिकॉज उनको ईश्वर से जो है वो आदेश नहीं था। तो इसमें ये है। अच्छा, उसके लक्षण बड़े आसान है। अभी जैसे आप मुझे देख लिए तो ऐसा नहीं है कि मेरे सारे क्रेविंग्स ऑफ वर्ल्डली डिजायर्स खत्म हो गए हैं। मैं नहीं कह सकता कि मेरा सारा मनी का डिजायर्स खत्म हो गया, नहीं तो मैं स्टॉक मार्केट की चिंता करूंगा। देवराव बाबा को भी मानते हैं। देवराव बाबा गॉड रियलाइज्ड मानते हैं उनको, नॉट सेल्फ रियलाइज्ड, ही वाज गॉड रियलाइज्ड। और बहुत सारे हैं, मतलब वो बिना गुरु के शब्द थे। हाँ, फिर आपका जैसे है आपका नीम करोली बाबा है, उनको नीम करोली बाबा, सब जो है वो गॉड रियलाइज्ड हैं। गॉड रियलाइज्ड में काफ़ी मिल जाएंगे आपको एक्चुअली। गॉड रियलाइज्ड में आपके ये हैं, क्या नाम है, चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु, जो प्रभुदास, हाँ, प्रभुदास जी का भी कहा जाता है। हाँ, मतलब ये सब जो है वो गॉड रियलाइज है। मतलब इन्होंने जो है वो सत्य को प्राप्त किया गॉड के रूप में। ठीक है, पर जो प्रेजेंट है उसमें कैसे पता करेंगे? ये तो एक्चुअली प्रेजेंट आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं मतलब इसके चक्कर में बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि मतलब कि हमें जो है वो जिंदा ही चाहिए। मतलब अगर जिंदा नहीं है तो वो मरा हुआ आदमी क्या कर लेगा। लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि गुरु का इस शरीर में होना या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, यू फील द प्रेजेंस ऑफ गुरु। अगर आप उस गुरु को अगर आप स्वीकार करते हैं, एक अच्छे गुरु को जो कि वास्तव में गुरु है, तो आप जब आपको प्रॉब्लम होगी तो यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ गुरु। तो ऐसा नहीं है, मतलब उसकी जरूरत नहीं कि वो गुरु जो है वो शरीर में ही हो। तो इसका मतलब है कि जो मतलब आप पढ़ रहे हैं या किसी भी उसके टच में आते हैं तो दे कैन बी योर गुरु। हाँ, जैसे आप देखिए कि रामकृष्ण परमहंस हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, मतलब दुनिया में नहीं है ये भी कहना गलत है, क्योंकि एक्चुअली वो लोग ज़्यादा एक्चुअली पावरफुल हो जाते हैं जब वो इस संसार में नहीं रहते हैं, मतलब इस शरीर में नहीं रहते हैं। तो मतलब आपको मैं बताऊंगा, आपको आश्चर्य होगा कि जैसे
जैसे हमारे ही गुरु हैं, योगानंद जी हैं, तो उन्होंने मतलब एक ही साथ कई लोगों को उन्होंने दर्शन दिए। इट हैपेंड विथ हिज परम गुरु ऑल्सो, और ये जो हैं आपके खुद रामकृष्ण परमहंस हैं। तो ये इन लोगों के बारे में कोई डाउट नहीं है कि भाई यहाँ पे तो कोई खतरा नहीं है। ये किसके, योगानंद जी किसके शिष्य? योगानंद जी एक्चुअली इनका जो लिनियज है वो बेसिकली इनसे है, मतलब इसके ऊपर है युक्तेश्वर जी हैं, युक्तेश्वर गिरी। एक्चुअली गिरी संप्रदाय जो है वो शंकराचार्य के गिरी संप्रदाय से रिलेटेड हैं लोग। हाँ, मैं कह रहा शंकराचार्य भी तो सेल्फ रियलाइज थे। हाँ हाँ, शंकराचार्य के एक्चुअली सर 10 ऑर्डर हैं, और हर ऑर्डर में आपको वो गॉड रियलाइज या सेल्फ रियलाइज लोग मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं, मैं कह रहा हूँ शंकर खुद से ना, बिना किसी गुरु के नहीं नहीं, उनके गुरु थे, क्या बात कर रहे हैं। हाँ, उनके गुरु शंकराचार्य के गुरु थे सर, वो उनका नाम था उनका गोविंद। हाँ, उन्होंने जब उनसे पूछा गया था वो निर्वाणा वो है ना कि आप कौन हो, वही गुरु थे ना जिनको उन्होंने आंसर किया है पूरा। नहीं, उनके गुरु काशी में थे यार, उनके वो उनका गुरु का नाम था गोविंद करके नाम था सर उनका, मुझे याद है। और गोविंद जी के भी गुरु थे जिन्होंने वो कारिका लिखी है, गौड़ापड़ जी। तो गौड़ापड़ के जो थे ये इनके परम गुरु हैं, वो शंकराचार्य के, जिन्होंने कारिका लिखी है। और ये शिष्य हुए गोविंद जी, और गोविंद जी के शिष्य ये हुए। आप देखिएगा गोविंद जी की अब ये आराधना करते हैं, तो ये भगवान कृष्ण की नहीं करते हैं, ये अपने गुरु ही करते हैं। अच्छा, ये वो बनारस में थे ना, वो शायद बनारस में उनके गुरु नहीं, शायद बताते कि ओंकारेश्वर में। हाँ, यू आर राइट, ओंकारेश्वर। हाँ, ओंकारेश्वर में उनका वो, यू आर राइट, अब मुझे याद आ गया, वहां पर उनका वो है भी। हाँ, ओंकारेश्वर में। और जो रियलाइजेशन रियल हुआ था, उन्हें रियलाइजेशन जो रियल हुआ था काशी में, जो मलेच्छ को देख के रास्ता बदल रहे थे तब हुआ था। अरे ये क्या है, काशी में जब उसको रास्ता बदल रहे थे ना, उधर से कोई शुल्कास मलेच्छ आ रहा था, रास्ता बदलने के लिए जब कह रहे थे, तब उसने कहा कि मैं और तुम तो एक ही हैं, तब उनको रियलाइजेशन ज्यादा हुआ। हाँ, वो भगवान शिव खुद ही थे वो। हाँ, तो वो जो है वो बोलते हैं कि मतलब तो वो मतलब वहाँ पे उनको रियलाइजेशन होता है कि मतलब उन्होंने कहा था कि मेरे सामने से हट जाओ, मैं अभी नहा करके आ रहा हूँ। तो वो बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि क्या है ये सब चीज़ें। चलो यहीं पे हम लोग खत्म करें ये तो इसका। नहीं भाई, आज तो बड़ा इंटरेक्टिव, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, बहुत अच्छा रहा। मतलब यू आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप, एंड अब जो है काफी अच्छा उसमें अनुभव आ रहा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो अच्छा हो रहा है। हाँ, एक्चुअली ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्चुअली वेदांत का यही सेशन होने वाला है, इसलिए मैंने सबको रिक्वेस्ट भी किया था कि भैया इसमें जरूर ज्वाइन करिए। मगर आप देखिए कि हमारे इसमें अभी भी जो है 6 लोग हैं मेरे छोड़ के, मतलब 7 हो गए, 6 तो हैं। तो अरे जी, ये रमणा महर्षि का आश्रम है तमिलनाडु में, हाँ, मैं गया हूँ, तिरुवन्नामलाई। वो मतलब अरुणाचलम है ना, नहीं, वेंकटल अरुणाचलम ही तो तिरुवन्नामलाई तिरुवन्नामलाई में है। गया हूँ हाँ, लास्ट ईयर। नहीं, उनका जो अरुणाचलम नाम है, उनके जो पहाड़ हाँ है शायद, उसका नाम हाँ अरुणाचलम। शायद, भाई हाँ। मिश्रा जी, अपनी आवाज सुना दीजिए। आई थिंक पहली बार ही आए हैं वीरेंद्र रंजन मिश्रा तो। एक्चुअली ये रमणा महर्षि की ग्रैंड मिश्रा डॉटर जी, मेरी वाइफ की फ्रेंड है। नहीं, मैं से कई बार आ चुका हूँ सर, शुरू में नहीं था, बाद में आया हूँ। जब से आ रहा हूँ आप तब से लगातार आ रहा हूँ। एकदम शांत प्रिय, सर, आप अपना चेहरा तो दिखला दें लोगों को। शांत। नहीं सर, अभी तो मैं बस ग्रहण कर रहा हूँ प्रसाद, बाकी तो बोलने की स्थिति में आने में टाइम है। नहीं, आप जो है ना, नहीं, आपका इंट्रोडक्शन तो कराना पड़ेगा, बिकॉज नोबडी नोज यू। सबका करा चुके, आदित्य शर्मा जी का भी करा चुके, राम प्रकाश का भी करा चुके, हो चुका है यहाँ पे। नहीं, मेरा भी हो चुका है सर, लास्ट टाइम आप नहीं थे सर जब मैं आया था। अच्छा, ओके, लास्ट टाइम मैं था, पर मैं लास्ट टाइम आपने लास्ट चेहरा टाइम, नहीं दिखलाया था सर। लास्ट टाइम। नहीं, आप अब आए ये तो थे, मगर अब आपने ये चेहरा तो वेदांत दिखलाया हो नहीं। गया है। लास्ट टाइम में था पर मैं नहीं था। नहीं, हाँ, मतलब मैं था, पर एक शादी में अलग पर कौन नहीं था। जाके सुन रहा था मैं। अब ये वेदांत की स्थिति आने लगी।